Hare Krishna. So in this particular lecture, we are going to discuss about Gauss law, and then we are going to discuss about conductors. So first segment of the lecture will be on Gauss law. Second one we are going to discuss about conductors. So Gauss law में आने से पहले there were some prerequisites. So the first prerequisite is to understand that area is a vector quantity. So area is a vector quantity. This thing we had discussed in the live class, and how to calculate the area. That is, it should have both the things. The first thing is the area will have a magnitude, and the area will also have a direction. The magnitude and the direction aspect of the area we had covered the live class. So area is certainly a vector quantity. Now, what Gauss law basically states is, I'm not telling you the entire statement, but the mathematical formulation of Gauss law is that the surface integral, this thing is known as surface integral of electric field and area, the dot product of electric field and area, that is equals to charge enclosed by epsilon naught. Now, who encloses this charge? What is this epsilon naught and what is this? We are going to discuss one by one. First of all, let us focus on the left hand side. That is integral of E dot dA. This thing is known as flux. Here, because electric field is there, therefore this is known as electric flux. When we are going to study magnetism, this would have been known as magnetic flux, integral of B dot dA. So flux is a vector quantity, and that can be associated with any vector like electric flux, magnetic flux. What is integral of E dot dA? We'll try to find out first of all integral of E dot dA for various kinds of arrangements. एरिया का जब बात किए थे तो वहां पर एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किए थे. एक था फॉर ओपन सरफेस और दूसरा तरह का एरिया था फॉर क्लोज्ड सरफेस. चूंकि अपने को इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट डी ए, तो डी ए का वेक्टोरियल आइडिया अपने को प्रॉपर रहना चाहिए. ठीक है. तो एरिया दो तरह का बात किए थे, ओपन सरफेस और एक क्लोज्ड सरफेस. ठीक है. अब इसका यूटिलाइजेशन करने से पहले एक बार फिजिकल मतलब समझते हैं इस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का क्या मतलब है. तो ध्यान से देखो, मान लो ऐसे करके अपना एक सरफेस है. ठीक है. लेट अस से दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड ए, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है. राइट. ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है. लॉजिकली देखते हैं, अगर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का मतलब है this is a summation of how many field lines are crossing through an area. It is a kind of summation of field lines crossing an area. ठीक है. summation of field lines crossing an area, ये जो definition है, this is valid for open surfaces. So this is for open surfaces, whereas for closed surfaces इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का जो मतलब है वो होता है नेट नंबर ऑफ या नेट क्वांटिटी ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द बॉडी. बॉडी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो एक क्लोज सरफेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग. ठीक है. दिस विल बी अ क्लोज सरफेस लाइक hollow sphere, solid sphere, whatever. The net number of field lines passing through the body, closed sphere, a closed surface basically. और नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्यों बोल रहे हैं? नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें से अगर फील्ड लाइंस जा रहा है, सो जब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करेंगे तो आपको दिखाई देगा. डिस्कशन किया था एरिया में कि एरिया मतलब बाहर की तरफ जाएगा ये सारा. दीज आर स्मॉल स्मॉल एरिया वेक्टर्स जो मैं बना रहा हूँ, स्पाइक्स की तरह जो बाहर आ रहा है, दीज आर स्मॉल स्मॉल एरिया वेक्टर्स. राइट. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे E डॉट डी ए, इस पर्टिकुलर फिगर में E मैंने लेफ्ट से राइट बनाया है, और E डॉट डी ए जो आएगा वो इस स्फेयर के लेफ्ट पोर्शन के लिए नेगेटिव होगा और E डॉट डी ए इस पोर्शन के लिए पॉजिटिव होगा. तो दोनों का जो समेशन है, दैट इज द फ्लक्स नेगेटिव जो भी है
और जो टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है, ये दोनों का जो समेशन होता है, दैट विल गिव मी द नेट फ्लक्स। दिस इज फाई नेट। तो क्लोज्ड सरफेस के केस में, इसीलिए यहाँ पे ये जो सिंबल है ये बोलता है कि अपने को पूरा एरिया, उस जो पूरा क्लोज सरफेस है ना, उसके पूरे एरिया पे लेना पड़ता है ई डॉट डी ए। अब ध्यान से देखो, हर एक छोटे छोटे एरिया पे लिया गया ई डॉट डी ए, यहाँ पर भी ई डॉट डी ए, यहाँ पर भी ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, सारे पॉइंट्स पे ई डॉट डी ए लिए हैं और उसका समेशन किए हैं, तो वो मेरे को नेट फ्लक्स देता है। इसका मतलब अगर फील्ड लाइंस घुसता है एक क्लोज सरफेस में, ध्यान समझना, कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस होता है और उसमें अगर फील्ड लाइंस अंदर के तरफ जा रहे हैं, सो दैट विल कंट्रीब्यूट इन नेगेटिव फ्लक्स। लॉजिकल है ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो बाहर जाएगा, पर फील्ड लाइंस तो अंदर की तरफ घुस रहा है, तो जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इस सरफेस से, सो दैट विल कंट्रीब्यूट इन पॉजिटिव फ्लक्स। वो पॉजिटिव फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, देयरफॉर एक नेट फ्लक्स देखना रहता है। So we're basically right now not much bothered about the Gauss law, but we are trying to calculate flux for different kind of arrangements, क्योंकि तभी तो Gauss law का लेफ्ट हैंड साइड निकाल पाएंगे, राइट। तो देयरफॉर फ्लक्स का दो कंपोनेंट, दो हम लोग सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक है फॉर ओपन सरफेसेस। ओपन सरफेसेस के लिए जो अपने को फील आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, दैट्स इट। number of field lines crossing an area or a surface, that is basically electric flux for an open surface, whereas for a closed surface ध्यान रखना पूरे बॉडी पे करना पड़ता है, कहीं पॉजिटिव आता है कहीं नेगेटिव आता है, उसका पूरा समेशन लेते हैं, तो वो मेरे को नेट फ्लक्स देता है। अच्छा, नेट फ्लक्स अगर ये क्लोज सरफेस का बात करें हम, सो नेट फ्लक्स पॉजिटिव कब आएगा रे क्लोज सरफेस के लिए? नेट फ्लक्स पॉजिटिव तब आएगा जब क्लोज सरफेस के लिए व्हेन, आप समझ रहे हैं ना, मोर फील्ड लाइंस एंटर, when more field lines enter than leave, तो फ्लक्स पॉजिटिव नहीं होगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा उस केस में। फ्लक्स नेगेटिव होगा अगर मोर फील्ड लाइंस एंटर देन लीव, ज्यादा अगर घुस रहा है कम निकल रहा है, इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव आता है। और अगर ज्यादा निकल रहा है बाहर, हाँ, इफ फ्लक्स पॉजिटिव कब आएगा? इफ मोर फील्ड लाइंस लीव देन एंटरिंग। सो उस केस में जो फ्लक्स आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्योंकि जब समेशन करते हैं ना, जो जब मतलब बेसिकली हम जो फ्लक्स लिखते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स का समेशन होता है। सो अगर ज्यादा बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में इससे, देयरफॉर इसका जो टोटल समेशन होगा ना, दैट विल बी, बाहर अगर ज्यादा निकल रहा है तो ये ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो आएगा जो नेट फ्लक्स है। जो नेट फ्लक्स है वो उस केस में ज्यादा आ जाएगा, मतलब जीरो से ज्यादा आएगा। तो दैट इज अ ओवरऑल फीलिंग ऑफ फ्लक्स जो मैं आपको देना चाह रहा था। नाउ लेट अस गो टू सॉल्विंग सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन फ्लक्स। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख। फर्स्ट क्वेश्चन पहले ओपन सरफेस के लिए डील करेंगे, देन हम लोग क्लोज सरफेस पे चले जाएंगे, ठीक है। कंसिडर करो यहाँ पर ऐसे करके एक डिस्क लेटा हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द डिस्क लिया गया है। कंसिडर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अलोंग आई कैप, है ना। सो इसका रेडियस आप पकड़ ले आर, और दिस इज ई नॉट आई कैप। सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? दिस इज टू डायमेंशनल सरफेस डिस्क। कितना फ्लक्स होगा फटाक से देख के बता सकते हैं। जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है रे? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, राइट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट आई कैप है, डॉट जब हम करेंगे डी ए, तो डी ए, अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा? हाँ, एक्चुअली इसको बाहर निकालेंगे तब जब इसको लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा, सो अंदर में बचेगा अपना डी ए कॉस थीटा, राइट। और कॉस थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए। वो हर समय कांस्टेंट है, वो कितना है? डी ए इज 90 डिग्री ऊपर की तरफ, या आप नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। फॉर ओपन सरफेस जो एरिया का डायरेक्शन है वो या तो ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं और नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, बस सरफेस के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज कॉस 90 डिग्री,
हाँ, सो डीए का जो इंटीग्रल है इंडिविजुअली आता पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे cos 90 डिग्री है, देयरफॉर दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी जीरो, है ना, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर cos 90 डिग्री, राइट। सो मेरे को क्या देगा, इनफैक्ट ये भी बाहर चला जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ना, तो ई cos थीटा पूरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीए बचेगा। हाँ, सो इंटीग्रल डीए इतना होता है, हालांकि लंबा चौड़ा करके दिखाया हूँ आपके समझने के लिए इनिशियली, तो फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, राइट। डायग्रामेटिकली हम देख के ही कह सकते थे कि फ्लक्स जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है ना, तो सरफेस से कितना, इस डिस्क के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, एक भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में ही रखा हुआ है ये डिस्क, तो इलेक्ट्रिक इस डिस्क से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा, एक भी फील्ड लाइंस पास अगर नहीं करेगा, तो बताया था कि फ्लक्स इज समेशन ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, तो अगर एक भी क्रॉस नहीं कर रहा तो फ्लक्स विल बी जीरो। तो ये आपको फीलिंग आना चाहिए, किसी सरफेस से अगर फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं तो वहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ऐसा करके अपने को ये पहला एग्जांपल समझने का था। लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स, जस्ट 1 मिनट। नाउ लेट अस कंसीडर कि डिस्क वैसे ही है बट उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग है। नाउ लेट अस से द डिस्क इज एंड इज केप्ट इन दिस पर्टिकुलर फैशन ऐसे, ठीक। एंड मैं एक ही लाइन बना रहा हूँ, सो द फील्ड लाइंस आर इन दिस फैशन, लाइक दिस, ठीक है, आई ड्रॉ मल्टीपल एंड से दिस इज ई नॉट and the radius of the disk is r. Say this angle is 30 degree. So now you are supposed to tell what is the flux. You can calculate once. I'll write one more question. So ये दोनों सिचुएशन में अपने को क्या बताना है, फ्लक्स कितना होगा। I'll draw one more figure. This is a rectangle and it is kept at 37 degree from positive x-axis. This is x, this is y, and this is z. ठीक है, this is x, this is y, and z. Correct है सब कुछ, yeah. And say for example, the electric field in this region is given by 2i cap minus 5j cap plus 4k cap. This is the electric field which is given in this particular region. So what will be the flux through the rectangle? ये question है. This is question number 3. Let me give एक और question मैं दे देता हूँ. Here one charge is kept. Charge is say q, and this is a disk that is kept. डिस्क का जो एक्सिस है वहीं पे q रखा हुआ है ऐसे करके, डिस्क का रेडियस इज r. आपको बताना है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, द फ्लक्स थ्रू द डिस्क कितना होगा ये बताने का है, ठीक है। चलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, सो बेसिकली ई कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है और एंगल भी दिख ही रहा है साफ साफ, तो डायरेक्टली ई डॉट डी ए कर लेंगे। सो 30 डिग्री है, राइट। हाँ, सो ई डॉट डी ए में जब एरिया बनाएंगे तो वैसा करके बना सकते हैं हम, राइट। एरिया वेक्टर ऐसे करके बना सकते हैं। सो इन दैट सिचुएशन अगर एरिया वेक्टर हम ऐसे करके एज्यूम किए हैं, सो द फ्लक्स इज गोइंग टू बी व्हाट, ई नॉट multiplied by area का magnitude multiplied by cos theta, where theta is the angle between electric field and area. So angle कितना है ये, 60 degree, right? So cos 60 degree is half. Therefore the answer is E naught pi r square by 2. ठीक है, अगर एरिया वेक्टर को ये वाले डायरेक्शन में मानते
एरिया वेक्टर को अगर ये वाले डायरेक्शन में मानते तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता, उस सिचुएशन में यहाँ पे 60 डिग्री आता, सो 180 माइनस 60 हो जाता, कॉस 180 माइनस 60 लेते, सो माइनस आ जाता सिर्फ। सो अगर आप नॉर्मल को उल्टा कर देंगे तो जो फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो और ये ओपन सरफेस के केस में इसीलिए हमेशा जब भी फील्ड लाइंस दिया रहता है तो फ्लक्स का दो पॉसिबिलिटी रहता है, एक पॉजिटिव वाला आएगा आपका और एक नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो अगर नॉर्मल का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, नॉर्मल इसको नहीं ले करके अगर इसको लें एन कैप, मतलब नॉर्मल वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर एन कैप अगर ले लें उसको, सो इन दैट सिचुएशन जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। सो देयरफॉर जब भी आपको ओपन सरफेस देगा स्पेसिफाई करेगा कि इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन आई एम सपोज टू टेक द नॉर्मल। यहाँ पर देख पटाख से, जो फ्लक्स होगा दैट इज ई नॉट, अगेन ये फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए कर सकते हैं, अगर ई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और दोनों के बीच का एंगल भी अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग द इंटीग्रल फॉर्मेट। तो यहाँ पर फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई तो कांस्टेंट ऐसे करके, एरिया वेक्टर कैसे ले लें, चलो ऐसे ले लेते हैं सपोज। सो ई डॉट ए, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है और एरिया ऐसे करके है, और ये वाला एंगल था 60 डिग्री, सो ये जो एंगल है दिस विल बी 30 डिग्री, राइट। ओके, सो E multiplied by area multiplied by cos 30 degree is √3/2, so this is the answer। इसका ये पॉजिटिव वर्जन और एक नेगेटिव वर्जन, बोथ विल बी द आंसर्स। सो फर्स्ट टू क्वेश्चंस, नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज अ रेक्टेंगल, सो अगर रेक्टेंगल दिया है, अगेन एरिया आई कैन इजिली कैलकुलेट व्हिच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, और एरिया अगर निकाल लेंगे तो एंगल भी कांस्टेंट ही दिख रहा है अपने को, सो अगेन ई डॉट ए वाला वर्जन ही यूज कर सकते हैं हम। ध्यान से देखो, एरिया को अगर मैं ऐसे करके इमेजिन कर लेता हूँ, है ना, और ये एरिया इज बेसिकली व्हाट 90 डिग्री टू दिस सरफेस, सो दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, ठीक है। अब इस एरिया का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरे को दिख रहा है साफ साफ, इट विल बी 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। So इस 10 मीटर स्क्वायर को वी कैन ब्रेक इन टू कंपोनेंट्स, आई विल राइट द एरिया वेक्टर एज 10 cos 37 k cap, that is 8k cap, है ना, and 10 sin 37, that is -6 I cap, this is the area। of course इसका एक opposite end में भी एरिया होगा, बट हम अज्यूम कर रहे हैं इस तरफ। सो इन दैट केस जो फ्लक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ई डॉट डी ए, तो अगर ई डॉट डी ए करेंगे तो देख 8 4 इज 32 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज -12, सो दैट इज 20, ठीक है। हाँ 20, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट पर मीटर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, सो दिस इज वोल्ट मीटर। फ्लक्स को यू कैन द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, सो दिस इज बेसिकली जो फ्लक्स निकाले वो डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला से यूज करके निकालिए, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द डिस्क, इफ यू केयरफुली ट्राई टू सी द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, कैसे निकालेंगे डायरेक्टली। अच्छा, फ्लक्स आ कैसे रहा है पहले तो वो देखते हैं, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइन से ये क्रॉस नहीं कर रहा है थ्रू द डिस्क, देयर आर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ फील्ड लाइंस ओनली जो डिस्क को क्रॉस कर रहा है, वो यहाँ से लेकर के इसके रेंज में ही लाई कर रहा है, यहाँ से इसके रेंज में ही लाई कर रहा है द फील्ड लाइंस विच विल क्रॉस दिस डिस्क, ठीक है। सो आई विल रब दिस पोर्शन, दिस इज ऑफ नो यूज। अपने को निकालना है फ्लक्स, तो अगर ध्यान से देखो तो हाँ, डिस्क के हर एक पॉइंट पर में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। इनफैक्ट अगर डिस्क के अराउंड ऐसे करके एक पतला सा रिंग बना दे तो बिकॉज रिंग का हर एक पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस क्यू, तो इस रिंग के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज इस रिंग के हर एक पॉइंट पर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पर में ऐसा करके रहेगा, है ना। अगर आप लॉजिकली देखो तो ये वेक्टर क्वांटिटी, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होने से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, फ्लक्स मतलब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, स्केलर है, तो हर एक पॉइंट पे अपने को ई डॉट डी ए करना पड़ेगा वो वाले स्टाइल में। इनफैक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर इस पूरे सरफेस को लिया जाए ना, इस पूरे रिंग के एरिया को अगर हम कंसिडर कर लें, उसके एरिया को लेट अस कॉल इट डी ए, तो डी ए इज कॉन्स्टेंट, डी ए फिक्स हो जाएगा,
अगर से एक्स पे जा करके डी एक्स लिए हैं, सो इसका जो एरिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना होगा रे, 2 पाई एक्स डी एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये जो क्वेश्चन में ये मेंशन करना था, आई डिड नॉट मेंशन। से फॉर एग्जांपल ये कितने दूरी पे ले ले, से डी दूरी पे लेते हैं, दिस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन the electric field at this particular location will be constant, and electric field का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड ई इज कांस्टेंट एंड डी इज कांस्टेंट, एंड जो ई इज कांस्टेंट डी इज कांस्टेंट, और जो cos थीटा है फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस, सो ई ऐसे करके है ना, और जो एरिया है वो ऐसे करके है, so दोनों के बीच का एंगल इज दिस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये थीटा भी कांस्टेंट है, ये थीटा ये वाला थीटा है, और cos थीटा क्या हो जाएगा अपना, दिस बेस दैट इज डी बाय हाइपोटेन्यूज। सो डी बाय हाइपोटेन्यूज इज रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो ई डी ए कॉस थीटा का बेसिकली अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है फॉर द एंटायर सरफेस, तभी अपना आंसर आएगा। सो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, तो जो डी फाई जो छोटू फ्लक्स है वो क्या होगा, देख, ई dA into cos theta. So this will be what? 2 pi x d dx by d square plus x square का पावर 3/2। ठीक है, so this is what we are getting। अब इसको इंटीग्रेट करने से we will get the answer। So ऐसा इंटीग्रेशन we have done before। Just one second। So इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए let us try to quickly integrate। देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, सो यहाँ पे के क्यू 2 पाई डी इज कमिंग आउटसाइड, एंड अंदर में बच रहा है एक्स डी एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैन बी टेकन एज पी स्क्वायर, सो इन दैट केस दिस विल बी व्हाट, टू को अंदर ही घुसा लो, 2x dx। सो 2x dx इज व्हाट, 2x dx इज 2p/dp। हाँ, सो ओके, एक्स डी एक्स बाहर ही रहने दे, एक्स डी एक्स ही आ गया अपना पी डी पी। सो इन दैट केस 2k/q/डी, this is equals to p dp by, this is basically p square, so p q बाहर निकलेगा, so कट के यहाँ पर में p square आएगा, इसका इंटीग्रल है ना। और when I take care of this thing, this is 2k/q/d, p का पावर -2/-1, this is 1/p। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, we were supposed to integrate it from p का, एक्चुअली p का डालना पड़ेगा। सो x जब 0 था तो p का वैल्यू वॉज d, एंड जब x का वैल्यू आर स्क्वायर हो गया, देन दिस इज डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। सो इसको दिस विल गेट रिवर्स्ड, सो d विल गो अप एंड डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल कम डाउन। व्हाई? बिकॉज एक माइनस साइन था, माइनस साइन से मैंने लिमिट को चेंज कर लिया है। सो द इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज 2k/q/d, एंड दिस इज 1/d -1/, ये रूट आएगा या एज इट इज रहेगा, ओके p, सो दिस वाज रूट p है ना, तो p का जो लिमिट आएगा जब x r के बराबर होगा, सो p विल बी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस मच। सो दिस इज रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, p को अगर बाहर निकाल लिया जाए, आई कैन राइट इट लाइक दिस, सी 2k को लिख लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/, d को अंदर ही घुसा देंगे अगर, दिस विल बी 1 माइनस d बाई दिस थिंग, and d by this hypotenuse is nothing but cos theta, so I will write 1 minus cos theta। Yes, so what we are getting is pi and pi is getting cancelled, we are getting q/2 epsilon naught 1 minus cos theta is the flux
through this disk. This is a very important result that we will also once derive once we read the concept of solid angle. ठीक है? So right now, for the time being, we are supposed to remember this result for future use. What is the result that we have derived? ध्यान से देखो, the result that we have derived here is, of course, this was a problem, but if you remember this result, काफी सारा tough questions आसानी से होगा without doing much calculation. The result is that अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज Q रखा हुआ है, एंड इफ यू केयरफुली सी cos थीटा को जब रिप्लेस किए हैं तो cos थीटा क्या लिया गया है, d बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो d बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये तो डी रूट अंडर ये है बेसिकली, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज दिस थिंग, हाइपोटेन्यूज. सो d बाई हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा. तो ये है क्या बोले इसको, दिस एंगल हाफ एंगल इज थीटा कंप्लीट. मतलब रिंग का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है या बॉटम मोस्ट पोर्शन से लेकर सेंटर तक का ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज थीटा. सो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कुलर सरफेस बनाता हूँ जिसका रेडियस आर है और ऊपर से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होता है, ये चार्ज जो यहाँ पे रखे हैं by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta. This result you can remember, है ना. अगर ये result आपको याद है, so this was question number 5. Let us have question number 6 based on this particular result only. That if I tell you question number 6, let us consider there is a cylindrical surface. Let us consider there is a cylindrical surface and charge is kept here, and let us say the total length of the cylinder is 2r and r is the radius of this thing, and charge q is kept at the symmetrical center of the cylinder, right? We are supposed to find the flux through the curved surface of cylinder. Okay, probably ये आप अभी तो नहीं निकाल पाएंगे. Curved surface, you might not be able to find the flux. All right, but at least you can find the flux through the flat surfaces, the phi net through the flat surfaces of the cylinder. ये आप surely निकाल सकते हैं अभी. What is the net flux through the flat surfaces of the cylinder? So you can quickly solve and then look at the solution. All the questions, whatever I will be doing, first of all, you solve on your own and then look at the solutions. Okay? So flux through the flat surfaces. Right now we have studied that if a Q charge is located on the axis of a circular surface like this, then the flux is given by the formula. Phi 1 can be stated as Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta, where cos theta is this angle, right? This angle is theta. So ये half जो दूरी है ये radius हो जाएगा, and this is already r. So therefore if you carefully see cos theta कितना है, मतलब tan theta if you see r by r. So tan theta is basically 1. This means theta is 45 degree. So 1 minus cos 45 degree will be 1 by root 2. ठीक है? So this is the answer. No, this is the flux through one surface, and ये positive है, ध्यान रखना. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड एरिया इज आल्सो आउटवर्ड. सो ये ओवरऑल जो क्वांटिटी आया है दिस इज पॉजिटिव. एंड फॉर द सेकंड सरफेस आल्सो दिस वन विल बी आल्सो द फ्लक्स इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज इसके लिए भी एरिया ऐसे करके है एंड द फील्ड लाइंस आर लाइक दिस आउटवर्ड ओनली. सो द टोटल फ्लक्स दोनों के लिए सेम फ्लक्स होगा क्योंकि दोनों से जो दूरी है इनिशियल वो सेम ही है. सो देयरफॉर द टोटल फ्लक्स टोटल will be this multiplied by 2. So I can write q by epsilon naught 1 minus 1 by root 2. This is the answer to this question. Okay, but if a person does not remember this, then it will be very difficult to solve it. This result has to be remembered. Okay, let us solve some more questions quickly. Now let us take closed surfaces and try to solve the questions. So question number 7. Consider that there is a cube and this cube is kept in a uniform electric field. Okay, this cube is kept in a uniform electric field. Say the electric field is E naught and this cube is of edge A. We are supposed to find the phi net through the cube.
आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। हाँ, कि एक क्यूब है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस फैशन, इट इज नॉट इंक्लाइंड, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है ऐसे करके क्यूब से, एंड देयर इज नो एंगल थीटा, ऐसे करके बना रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर सपोज टू फाइंड द फाइन नेट थ्रू द क्यूब। ठीक है, सॉल्व करो फिर देखना सॉल्यूशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, लेट मी ड्रॉ दिस क्यूब हियर। सो ये अपना क्यूब है। आप लॉजिकली अगर देखो तो हम हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, सो टोटल तो 6 सर्फेस है, राइट। अब जो ये वाला सरफेस है ऊपर वाला, जो फील्ड लाइंस है वो तो ऐसे करके जा रहा है, तो ऊपर वाले सरफेस से कोई भी फील्ड लाइंस घुस नहीं रहा। मैं बेसिकली आपको पूरा करके दिखाता हूँ। देखो, आपको जब भी क्लोज सरफेस रहे और इस टाइप से दिया हुआ रहे, व्हाट शुड गो इन योर माइंड इज that if I'm supposed to find the total flux, then I'm supposed to find the flux through one surface plus the flux through another surface plus the flux through another surface plus 4 plus fifth phase plus sixth phase. So flux through all the surfaces मेरे को देखना है and सबका summation लेना है, that will give me what, the total flux through the body. अगर हम सारा spaces के through flux निकाल पाए, then it will give me the flux, net flux through the cube. This is how we are supposed to approach these problems. क्लोज सर्फेसेस के लिए हमेशा ऐसा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगर आपको बोलता व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फ्लक्स थ्रू टू फ्लैट सरफेस प्लस द टोटल फ्लक्स थ्रू वन कर्व्ड सरफेस, अपने को ये अप्लाई करना था। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर क्लोज्ड बॉडी। अपने को जब फ्लक्स निकालना रहता है टोटल थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी, देन आई टेक द फ्लक्स थ्रू ऑल द साइड्स या ऑल द एरियाज, है ना। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए में वो सरफेस इंटीग्रल होता है, तो टोटल सरफेस एरिया से लेते हैं ना, देयरफॉर वहाँ पे अलग अलग तोड़ तोड़ के ऐसे करके किया गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला जो सरफेस है इसके थ्रू तो फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इसमें से एक भी फील्ड लाइंस घुसेगा नहीं। फील्ड लाइंस वर लाइक इन दिस फैशन, सो फील्ड लाइंस ऊपर से टेंजेंशियली निकल जाएगा टू दिस सरफेस, सो एक भी जाएगा नहीं अंदर, सो फ्लक्स टू दिस सरफेस इज जीरो। एक सरफेस से जीरो हो गया। इनफैक्ट जो बॉटम सरफेस है उसका भी सिचुएशन कुछ वैसा ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, if I draw like this, then field lines will be tangential to this surface also, so uske through the flux will also be zero, so दो zero हो गया। now if you carefully see जो front surface है, जो front में है, which is facing us, again the field lines will just touch and leave it, right। तो उसके थ्रू भी कोई भी फ्लक्स जाएगा नहीं, in that situation उसके थ्रू भी जीरो। एंड सिमिलरली जो पीछे वाला है, हाँ, जो हमको फेस नहीं कर रहा बट हमारे ऑपोजिट जो फेस में है पीछे, उसको भी फील्ड लाइंस बस टच करते हुए निकलेंगे, उसमें से एक भी फील्ड लाइंस घुसेगा नहीं। हाँ, सो देयर आर नो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, सो फ्लक्स थ्रू दैट एरिया विल आल्सो बी जीरो, राइट। सो दो ही ऐसा एरिया है इस पूरे क्यूब में जहां से फील्ड लाइंस विल पास थ्रू। The field lines are passing through only two surfaces, and this is one left surface and one right surface. Now, because the area is constant and field is constant, and I can very clearly see that the angle between the field lines and the area is either 90 degree or 180 degree. We can directly use E dot dA. ठीक है? So E naught was the electric field. So ये particular surface से जो flux है वो कितना होगा रे? एरिया बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर, सो इट इज ई नॉट ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज cos थीटा? इट ई डॉट डी होता है ना, सो ई ए cos थीटा। एरिया बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो इट इज cos 180 डिग्री, सो cos 180 डिग्री इज -1। सो ई नॉट ए स्क्वायर और एक माइनस माइनस ई नॉट ए स्क्वायर इज द फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, राइट। एंड द फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस कितना होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकल रहे हैं, घुस के निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गायब नहीं होगा बीच में, ठीक है। जो यहाँ से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो इन दिस फैशन। सो यहाँ पर से जो फील्ड लाइन जाएगा वो ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यहाँ का जो एरिया है वो तो बाहर की तरफ ही है, और ए स्क्वायर, सो ई नॉट ए स्क्वायर cos 0 डिग्री दैट इज 1, दिस इज 0। या सो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 0। ये हम मैथमेटिकली देख पाए एंड फिजिकली भी कह सकते थे। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज एंटरिंग this particular cube, that many number of field lines are leaving this cube. There is no
net electric field lines either coming into the cube and there is no net electric field lines going out of the cube. So ना ही कुछ अंदर घुस रहा है नेट, ना ही कोई बाहर घुस रहा है नेट, मतलब जितना माइनस था उतना ही प्लस है, देयरफॉर द फ्लक्स इज जीरो. सो फिजिकली देख के कह सकते हैं दैट इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग a closed surface equals the number of field lines leaving the closed surface, in that situation the flux through the surface overall is going to be zero. So please note down this point that if the number of field lines entering any closed surface is equal to the number of field lines leaving, and a field lines entering is equal to sigma field lines leaving, that situation the total flux is zero to the surface. Okay. How many questions were there that covered? We had covered 7 questions, right? So we'll start with the 8th question. Question number 8. Now consider again, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. ठीक है? Now let us consider cube यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे करके. This is again a cube. I'm sorry, it's not looking like a cube, but you can imagine it's a cube. The distance of this particular face from the edge is L. From this face is L, and the cube has an edge A. The field which is located in space, electric field, is given by E naught x I cap. It's a function of x. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, the value of electric field strength, the electric field strength will increase with x. ठीक है? So E equal to E naught x I cap. So now you are supposed to find the flux through the cube. This is the question कि flux through the cube कितना होगा, right? So again, how we will find? See, there are some things logical. Since the electric field, first of all you try once and then look at the solution. एक बार खुद से try कर लो, फिर solution की तरफ देखो. सोचो आराम से, सोचो हड़बड़ाओ नहीं. देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, सिर्फ आई कैप के अलोंग है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? ऐसे करके. So therefore again we very can easily conclude that सिर्फ दो ही सरफेसेस पिक्चर में आएंगे, एक ये लेफ्ट सरफेस और एक ये राइट सरफेस, क्योंकि बाकी सारे सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट, सो फ्लक्स थ्रू all other surfaces will be zero. So only two surfaces will remain, and that is side A and side B. So ये दो sides के थ्रू ही कुछ फ्लक्स आएगा. अब साइड ए के थ्रू कितना फ्लक्स आ रहा है, सो ध्यान से देखो, क्योंकि ये L डिस्टेंस पर में लोकेटेड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली E नॉट x, डायरेक्शन था आई कैप के अलोंग. सो एट x इक्वल्स टू L, मतलब ये पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू L. इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू L इज गोइंग टू बी E नॉट L, है ना. इस पूरे प्लेन में इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही वैल्यू आएगा क्योंकि x कांस्टेंट है ना इस पूरे प्लेन पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज E नॉट मल्टीप्लाइड बाय L. एंड इफ वी कंसीडर एट दिस सरफेस, इस पूरे सरफेस में अगेन x इज कांस्टेंट इस पूरे सरफेस पे, राइट? x का वैल्यू इज A plus L. So electric field on the surface B, ये था electric field on the surface x equals to L, और electric field on surface A, B पे कितना हो जाएगा, E नॉट A plus L. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, और ध्यान से देखो कांस्टेंट है सरफेसेस पे, वेरी कर रहा है बट x के साथ वेरी कर रहा है, सरफेस पे वेरी नहीं कर रहा है. सरफेस पे जब वेरी नहीं करता है तो हम देख रहे हैं कि एरिया कांस्टेंट है सरफेस का, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और cos थीटा आराम से पता चल जाएगा अपने को. सो देयरफॉर जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट विल बी फाई 1 प्लस फाई 2, वेयर फाई 1 कितना आएगा, फाई ए लिख देता हूँ, फाई ए प्लस फाई बी. फाई ए कितना आएगा देखो, मैग्नीट्यूड कितना है वहां पे, ई नॉट एल, और फ्लक्स आएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लस बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट इंटू ए प्लस एल, और वहां पर में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्क्वायर, और ये पॉजिटिव आएगा, राइट? जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देख, ई नॉट एल ए स्क्वायर और ई नॉट एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज गोइंग टू बी ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब. वेरी सिंपल. ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा ही क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने को क्लैरिटी आएगा.
So this is question number 8. Let us come to question number 9. Question number 9 में there is some similar situation. Now in question number 9, I tell you that there is a cube which is kept in this fashion. Cube is kept like this, ठीक है? And electric field is given by A plus by j cap. This is the value of electric field, and A plus by j cap, ठीक है? Now the edge of the cube is A. Again, this is a cube and edge of the cube is A, मतलब A तो already दिया हुआ है. Edge of the cube क्या ले ले? L ले लेते हैं, ठीक है? L is the edge of the cube. Find the flux through the cube. This is the question. Find the flux through the cube. फटाक से try करो, फिर देखना solution की तरफ. First of all, try it on your own and then look at the solution. Yeah. So if you carefully solve it, you will realize that in this particular situation, the electric field is in perfectly y direction, right? So the electric field का direction है, that is somewhat like this. ऐसा करके. So again, कितने sides picture में आएंगे flux के लिए? फिर से अगर आप ध्यान से देखो, तो जो दो परपेंडिकुलर सरफेसेस है जो पिक्चर में आएगा फ्लक्स निकालने के लिए, वो यही दो सरफेसेस आएगा. बाकी सारे सरफेसेस से फील्ड लाइंस विल बी टेंजेंट, तो उसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा. लेट अस कॉल दिस सरफेस ए, लेट अस कॉल दिस सरफेस बी. बस यही दो सरफेसेस आएंगे. हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि ई इज अ फंक्शन ऑफ वाई. हाँ, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. आई एम सॉरी, मैं लेबलिंग करना भूल गया आपके लिए. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. अभी तक अगर कंफ्यूजन हो रहा था एक्सिस में, तो ये देख के फिर से एक बार ट्राई कर लो खुद से, फिर देखना सॉल्यूशन. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद वाई. पर अगर वाई कांस्टेंट रखें हम, इफ वाई इज केप्ट कांस्टेंट, इफ वाई इज केप्ट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, राइट? सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर सरफेस के लिए तो वाई कांस्टेंट है, और वाई का वैल्यू कितना है सरफेस के लिए? 0. सरफेस ए के लिए वाई का वैल्यू इज 0. सो फ्लक्स कितना होता है? ई ए कॉस थीटा. अगर सारा कुछ कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? देखो, वाई तो 0 है सरफेस ए के लिए, वाई का वैल्यू तो 0 है. सो ए जे कैप. तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ए है ना, और इसका जो एरिया है वो नीचे की तरफ आएगा, एंड द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी व्हाट? एल स्क्वायर, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है यहाँ पर में, क्योंकि प्लस जे कैप के अलॉन्ग है, एंड द एरिया इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो cos 180 विल बी -1. The answer is minus AL square. And the flux through B, what will that be? So electric field का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? ध्यान से देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, A प्लस बी एल. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, और वहाँ पे एरिया कितना है? एल स्क्वायर. हाँ, एंड +1 लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में. तो दोनों को इफ आई ऐड, व्हाट विल दैट बी? बी एल क्यूब विल बी द आंसर, राइट? यू ऐड बोथ द थिंग्स, पाई ए प्लस पाई बी. दिस इज द आंसर ऑफ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब. ठीक है, इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, है ना. लेट मी सॉल्व one more question in this particular format only, and then we'll proceed ahead. Yeah, so this is question number 10. So in question number 10, consider that again there is a cube, and this is x-axis, and this is y-axis, and this is z-axis, and the cube is kept like this. And now the electric field is of the format axi cap plus byj cap, and the length of the cube, एक काम करो, इसको ax मत लो, let this be the same thing for the sake of calculations. Let this be E naught xi cap and this be E naught yj cap, and the cube edge be A. So then the question is, what is the is this the screen share नहीं हो रहा? Hare Krishna. Now I think the screen is getting shared and the recording is already on. Yeah. So I hope ये पिछला question clear था ना, BL cube. There was I think some problem with screen sharing, but okay. So this is question number 10.
that the value of E is given as E naught x I cap plus E naught y j cap and this is the cube of side A. ठीक है, तीन एक्सिस दिया हुआ है अपना x y और z इस तरह से. We are supposed to find the value of net flux. We are supposed to find the value of net flux to the cube. ठीक है, तो एक बार ट्राई करो फिर देखना सॉल्यूशन की तरफ. Try it out once. Okay, तो solution. सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरह से ही तोड़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या है, ई नॉट एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई जो है वो है ई नॉट वाई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट के लिए अलग से फ्लक्स निकाल लेते हैं, वाई के लिए अलग से फ्लक्स निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है ना. सो ठीक है, सो अलोंग एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते फ्लक्स कितना आएगा, देखो ये वाले कंपोनेंट के चलते जो फ्लक्स आएगा वो दो ही सरफेसेस पे आएगा, एक ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, राइट. बाकी सारा सरफेसेस के थ्रू ई एक्स का जो फ्लक्स है वो तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सारे सरफेसेस से टेंजेंशियल जाएगा. तो सिर्फ यही दो सरफेस पे, सरफेस ए और सरफेस बी पे ई एक्स का रोल आएगा. और अगर ध्यान से देखें तो जो फ्लक्स आएगा ए वाले सरफेस पे वहां तो फील्ड ही जीरो है. ए वाले सरफेस पे कोऑर्डिनेट इसका अगर चेक करो एक्स जीरो है, राइट, ये वाले पूरे सरफेस के लिए. इसका मतलब अगर एक्स को हम जीरो पुट कर दें तो ई एक्स जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो फ्लक्स नहीं आएगा ए पे. और अगर बी का बात करें तो बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज ए कॉमा जीरो, मतलब ये जो सरफेस है इस पूरे सरफेस पे एक्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज ए. एक्स कोऑर्डिनेट ए है इस पूरे प्लेन का. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज ई नॉट ए, तो वो कांस्टेंट है, तो बहुत अच्छा बात है. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वहाँ का एरिया, और कॉस थीटा विल बी जीरो क्योंकि एरिया बाहर की तरफ है और फील्ड लाइंस का भी वही डायरेक्शन है. ठीक है, पहला चीज. दूसरा चीज, फ्लक्स थ्रू वाई का अगर बात करें तो वाई भी है ई नॉट वाई. तो अच्छा, जब वाई का बात करेंगे तो कौन कौन सा जो साइड्स है वो पिक्चर में आएगा, वो भी हम आराम से समझ सकते हैं. ध्यान से देखिए, जो दो साइड्स अपना पिक्चर में आएगा वो रहेगा कौन कौन सा, एक ऊपर वाला क्योंकि वाई है ना, सो जो जो परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वही, बाकी सबसे तो टेंजेंशियल निकल जाएगा. तो इस साइड से टेंजेंशियल निकलेगा, इससे टेंजेंशियल निकलेगा, सामने वाले से टेंजेंशियल निकलेगा, पीछे वाले से भी ई नॉट वाई टेंजेंशियल निकल जाएगा. सिर्फ जो दो परपेंडिकुलर सरफेसेस आएगा वो ये आएगा जिसके थ्रू गुजर रहा है सरफेस का. देन इन नॉट नहीं परपेंडिकुलर नेसेसरीली, कोई भी एंगल पर कुछ तो एंगल बनाना चाहिए ना. 0 डिग्री बनाएगा तो टेंजेंशियल जाएगा, तो बाकी सारे सरफेसेस 0 डिग्री एंगल बनाते रहे तो देयर इज नो फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग सरफेसेस. फटाक से पैपा नहीं करते हैं, रिजॉल्व करते हैं. देखो, so field lines through, let this surface be A this time and this surface be B. So flux through A अगर ध्यान से देखो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है A पे, और B पे फील्ड भी ऊपर है, एरिया भी ऊपर है. कितना लिखेंगे, E नॉट A, फील्ड है E नॉट A और उसका एरिया अलग से है A स्क्वायर और cos जीरो लिखेंगे, राइट. सो द टोटल फ्लक्स जो कि स्केलर क्वांटिटी है हम लिख सकते हैं फाई एक्स प्लस फाई वाई, रूट अंडर ऐसे करके मत कर देना, ठीक है. पाई एक्स इज अपना एक अलग स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अलग स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे करके मत कर देना, स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स. सो विल सिंपली डू पाई एक्स प्लस पाई वाई एंड दैट विल गिव मी द आंसर टू ई नॉट ए क्यू. so this is the net flux to that particular region. ठीक है, okay. So this was question number 10. Now let us come to question number 11. In question number 11, consider that there is a charge q which is kept at the center and I am supposed to find the flux through a spherical boundary of radius r. I'm supposed to find the flux through this spherical boundary of radius r. ठीक है, so spherical boundary of radius r. So एक बार निकालो and then look at the solution. Find the flux through the spherical boundary of radius small r. So flux का जब बात करते हैं that is again integral of what E dot dA. अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इस पे हम छोटा छोटा एरिया लें तो क्या हर एक सरफेस से फील्ड कांस्टेंट आएगा क्या, बिल्कुल कांस्टेंट आएगा क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है ना. तो सारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, सारा डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही है एंड दैट इज आर, दैट इज रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर. सो देयरफॉर ई का जो वैल्यू है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर दैट विल बी व्हाट. सो बेसिकली अगर दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे सो ई कांस्टेंट है ऑन दिस सरफेस डी ए, क्योंकि ई कांस्टेंट है
इंटीग्रल डी अपने को पता है 4 पाई r² है पूरे सरफेस का। और अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों मिलके कितना एंगल बना रहा है हर एक पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, डीए भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो देयरफॉर cos 0 डिग्री हर एक पॉइंट पे बना रहा है। सो cos थीटा इज कांस्टेंट, डीए इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट। सो इंटीग्रल ई डॉट डीए बेसिकली इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ई ए cos थीटा, नो प्रॉब्लम, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। और cos 0 डिग्री लिख सकते हैं इनफैक्ट। ये है अपना k³ r², and area का value is 4 pi r², right? So this r² and r² is getting cancelled, and k I can write as 1 by 4 pi epsilon naught q multiplied by 4 pi. So 4 pi gets cancelled with 4 pi. This is q by epsilon naught. So this is the flux q by epsilon naught. What is this flux? Through this spherical surface. The flux through the spherical surface enclosing a charge q is basically q by epsilon naught. ठीक है, flux through the spherical surface enclosing a charge q is q by epsilon naught. Now in this situation if the q would have been negative, सपोज ये पहला पार्ट है, सपोज आपको दूसरा पार्ट बोलता हूँ कि इफ q इज नेगेटिव तो क्या चेंज आता, इफ माइनस q रख देते तो क्या चेंज आता, फ्लक्स कितना हो जाता है स्फेरिकल सरफेस से। फिर एक बार सोच के बताना, पहले सोच लो एक बार, स्क्रीन पॉज करके मैं आंसर बता रहा हूँ। जो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस होता उसमें कुछ चेंज नहीं आता, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इतना ही रहता है k³ r², कोई चेंज नहीं आता, एरिया इतना ही रहता, पर जो cos 180 डिग्री आ जाता है ना, क्योंकि फील्ड लाइंस फिर अंदर की तरफ जाते हैं, ऐसे घुस रहे होते टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और एरिया बाहर की तरफ जा रहा होता, राइट। सी, एरिया का जो वेक्टर है उसको चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं है, एरिया तो अपने क्लोज सरफेस बनाया तो एरिया बाहर की तरफ ही रहेगा। सो ई डॉट डी ए मतलब वहां पे cos 180 आ जाता है। तो आंसर वुड हैव बीन माइनस क्यू, क्यू कैपिटल में है तो माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वुड हैव बीन द आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, सो आप अगर ध्यान से देखो तो जो फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइप से आ रहा है क्या। खैर इस पर तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी तो फिलहाल रहने देते हैं ऐसा, है ना। चलो, एक चीज तो क्लियर हुआ कि फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब एक बात बताते, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट, दैट अगर यहाँ पे क्यू है एंड आई मेक अ स्फेरिकल सरफेस अराउंड इट, स्फेरिकल सरफेस है ध्यान रखना, इसका रेडियस r1 है। अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस को थोड़ा सा बड़ा कर देता और इसका रेडियस अगर मैं ले लेता r2, तो इस r2 के थ्रू फ्लक्स कितना आता है, ये जो सरफेस लिया मैंने r1, है ना, तो फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r1 इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r2 कितना आता, देखो प्रोसीजर सेम रहता ना, r² इज गेटिंग कैंसल्ड when we are calculating flux, r is basically getting cancelled, cos 180 degree नहीं है, let us discuss about positive charge, so r is getting cancelled, so जो flux आ रहा है that is independent of r, if you carefully see the flux through the surface, closed surface is independent of r. It's a very important point to note that this is independent of r. It does not depend on कितने distance पे जाकर के आप spherical surface बना रहे हैं, तो r2 के थ्रू भी जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक मेरे q से कंफ्यूज मत होना, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, q बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अगर यहाँ पर में q रखा गया है, सो इन दैट सिचुएशन ये आपको रट्टा मार लेना अच्छे से कि द फ्लक्स इज गोइंग टू बी q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, अब हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो तो इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और ये लॉजिकल बात है, हम देख के ही बोल सकते थे, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस r1 के सरफेस से क्रॉस करेगा उतना ही फील्ड लाइंस r2 के सरफेस से भी क्रॉस करना है, उतना ही फील्ड लाइंस r2 के सरफेस से भी क्रॉस करेगा। तो अगर मैं एक इरेगुलर शेप का भी एक सरफेस बना दूं ऐसे करके, तो क्या उसके थ्रू भी सेम फील्ड लाइन से गुजरेंगे या थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा, थोड़ा ज्यादा निकलेगा या एग्जैक्टली उतना ही फील्ड लाइंस निकलेगा, तो एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस इरेगुलर सरफेस से भी निकलेगा। So therefore, this flux through the irregular surface is also going to be q by epsilon naught, right? So therefore, we come to a general conclusion that whenever there is a closed surface which is enclosing a charge, because
क्या है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सी मैं आपको और इसका कुछ कुछ छोटा छोटा एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। लेट अस एक्सटेंड दोज रिजल्ट्स टू सम मोर जनरल केसेस। से फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है, एंड नाउ आई आस्क यू दैट आई हैव केप्ट अ क्यूब हियर। आई हैव केप्ट अ क्यूब, a box, cubical box, and I tell you what is the flux through this box. What is the flux through this box? So how you will calculate? So directly अगर हम ट्राई करेंगे निकालने का इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, अब ध्यान से देखो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर एक सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू का जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट से वो अलग अलग है। सो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। प्लस इफ इट इज सिमेट्रिकली केप्ट तो फिर भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, पर अगर ये सिमेट्रिकली रख दिया, सपोज यहाँ पे क्यू को रख दिया, तब आप समझ रहे हैं, सपोज क्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, तब तो निकालना और मुश्किल हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा अगर कहीं रैंडम पॉइंट पे रखा है तो देयर फोर फर्स्ट तो कंसिडर करते हैं, सपोज मैंने सेंटर पे रखा है क्यू। हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स? So flux is what? Flux is basically the number of field lines which will cross this cube. Certainly, I can say that if I surround this by a spherical surface of any radius within this cube only, तो इस spherical surface के through जो flux होगा वो तो हम कह सकते हैं ना q by epsilon naught होगा। ये तो श्योर शॉट कह सकते हैं कि flux through that spherical surface will be q by epsilon naught, and naturally because उस surface के through q by epsilon naught है, therefore जितना field lines उस surface के through pass करेगा रे, उतना ही तो क्यूब के थ्रू भी पास करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, उससे कम नहीं करेगा, राइट। देयरफॉर आई कैन से दैट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज आल्सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। देयरफॉर इसका घुमा फिरा के अगर पूरा इंटीग्रेशन करेगा भी कोई, तो इट हैज टू कम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। दिस इज अ वेरी वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट व्हिच वी हैव डिराइव्ड। सो नाउ यूजिंग दैट सेम थिंग हियर वी कैन आल्सो कंक्लूड कि अगर ऐसे करके क्यूब रखा होता ना यहाँ पर, मैं आई होप ये आप लोग का एप्लीकेशन समझ में आया, ऐसा करके यहाँ पर मैं सपोज क्यूब रखा भी होता है ऐसा करके, एंड कंसिडर कंसिडर कि यहाँ पर मैं रखा हुआ है वो चार्ज क्यू। अभी फ्लक्स कितना आएगा थ्रू द क्यूब? ये क्यूब इनसाइड है, अभी कितना आएगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब? अभी भी उतना ही आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी अंदर में है ना, तो इस क्यू को मैं एक स्फेरिकल ऐसा सरफेस से ढक सकता हूँ, और इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू पूरा थ्री डिमेंशनल में हर तरफ जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, हाँ, तो कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है, जितना फील्ड लाइंस निकल रहा है उसी का ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। This is not the magnitude of the number of field lines, but the number of field lines give me an idea of flux. The number of field lines that pass through a given surface is same as the number of field lines passing through another surface. So the flux will be constant for both. So therefore यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही surfaces से, चाहे वो ये अंदर में ये spherical surface हो या बाहर में वो cube हो, दोनों से the number of field lines that is going to cross is same. Therefore flux through the sphere will be equal to flux to the box, that is q by epsilon naught. Therefore, this is a very important and significant result. Now, one more thing we had studied, or if we have not studied, then pay attention. कि say for example मैंने यहाँ पर मैं q को रखा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं q को रखता हूँ तो जो और ये एक क्लोज सरफेस है, दिस इज जस्ट अ क्लोज सरफेस। अगर ध्यान से देखो, जितना फील्ड लाइंस घुसेगा क्या उतना निकल जाएगा। जितना फील्ड लाइंस इस सरफेस में घुस रहा है, ये घुसा, ये अंदर से आया और फिर ये निकल लिया, राइट। और जो टेंजेंट है वो तो घुसा ही नहीं, तो जितना फील्ड लाइंस घुसता है उतना ही फील्ड लाइंस निकल जाता है। therefore the fine net is going to be zero in this particular situation, ठीक है। तो the first segment is that if a q is enclosed within a closed surface, ये दो चीज क्लियर हुआ कि अगर q को मैंने ये पहला चीज देखो, तो ये दूसरा चीज देखो कि अगर q को बाहर में रखा है तो इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग will be equal to the number of field lines leaving. There is no net field lines within, right? So two things that we have learned is, if there is a surface which encloses a charge of q1, the flux through the surface is q1 by epsilon naught. And if encloses two charges, say q1 and q2,
In that case, flux total will be Q1 by epsilon naught plus Q2 by epsilon naught, क्योंकि Q2 अपना flux Q2 के चलते जो flux होगा that will be Q2 by epsilon naught, right? So therefore the total flux is going to be this much. If a negative charge is kept, say minus Q3, then in that case this will be minus Q3 by epsilon naught will be the total flux. Yeah, this much is clear. So this is due to the charges within, due to the charges within the closed surface. And if a charge is kept outside, so उसके चलते the flux का contribution is zero. Due to charges outside, due to charges outside the closed surface, the flux is zero, flux contribution is zero. So therefore, if I draw a surface and I have charges like Q1, Q2, minus Q3, Q4, Q5, and so on. If I have many charges, what is the total flux through this closed surface? Will Q4 and Q5 give any contribution? No, they will not give any contribution. So the contribution is given by these charges only. So the answer is Q1 plus Q2 minus Q3 by epsilon naught. This is the net flux through the closed surface, right? This is the net flux through the closed surface. So therefore, I see that what is this flux? It is integral of E dot dA. यही है ना flux to the closed surface. So integral of d dot E dot dA is basically I can write this thing as Q enclosed. जितने भी charges अंदर में है वही flux के लिए contribute कर रहे हैं. So Q enclosed by epsilon naught. This is Gauss law. That whatever flux is there, it will only be contributed by the charges enclosed. Into epsilon naught. Right? So the net flux through a closed surface is basically Q enclosed by epsilon naught. So basically we can say that if there is no charge enclosed, the flux will be zero through a closed surface, right? So in the previous situation, we had done lots of questions on in these particular situations. If you see that electric field is given by this particular format, and we had got a non-zero flux. So this means there must be some charge inside. There must be some charge inside due to which this flux is non-zero. Otherwise, the flux will be zero. अगर अंदर कोई भी charge नहीं रहेगा, then the flux has to be zero. Here also we see that the flux contribution is positive. This means there must be some charge inside. If there is no charge inside, then the answer is going to be zero. The flux will be zero. So the agar इसी particular question में the first question was what is the flux through the cube? We have found the flux through the cube. Let the second question be what is the Q enclosed within the cube? Find the charge that is enclosed within the cube. In that particular situation, we are going to find the flux. We have found the flux as E naught AQ for this particular question, and this should be equal to Q enclosed by epsilon naught. So the charge enclosed जो आता है इस particular situation में वो आता है E naught A cube epsilon naught. This is the Q enclosed. यहाँ पर भी वैसे ही करके निकाल सकते हैं कि जो भी फ्लक्स निकाले दिस इज इक्वल्स टू व्हाट Q enclosed by epsilon naught. So Q enclosed कितना आएगा B naught LQ multiplied by epsilon naught. हाँ एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर मैं क्यूब रखा हुआ था ऐसे करके बॉक्स रखा हुआ था और फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहे थे. दिस वाज यूनिफॉर्म E नॉट. इसमें फ्लक्स जीरो आया था. वो फ्लक्स जीरो आया था बिकॉज देयर वाज नो चार्ज एनक्लोज्ड. तो अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्यूब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर E नॉट इज कांस्टेंट and a dabba is kept in this fashion, then in that case Q enclosed will be zero. ठीक है. So therefore flux and Q enclosed are interrelated with each other as we have seen. This is a small derivation of Gauss law and this is logically derived in this particular fashion. Now we'll discuss some very important points about the Gauss law. See, there are a certain confusions which we want to clarify regarding the Gauss law. What are those confusions and what are the clarifications we'll be discussing. So the first is, let us first of all write the Gauss law. Integral of E dot dA is equals to Q enclosed by epsilon naught. So this is Gauss law. Now the question is, if net flux is zero,
does that mean that q enclosed will be 0? If the net flux is 0, does that mean that q enclosed will be 0? The answer is yes. If the net flux is 0, then naturally the q enclosed has to be 0, right? Second question is, and I'm drawing two diagrams so that you always keep these things in your mind, that let us say a q is kept over here and this is a closed surface. So these are the electric field lines. I'm drawing the surface because it will help you in answering the questions that I will be asking you right now. Yeah, this is the first thing. And the second figure that you can just keep in your mind is this is q1 and this is q2. So the flux is q1 plus q2 by epsilon naught. And outside also q3, but this is going to be the flux. So this is A and this is B. These two things you can just remember before answering these questions. Now the second thing is, पहला चीज तो यहाँ देख लिया कि अपना if finite is 0 q enclosed is 0. Okay. Second question is, अगर flux 0 आता है तो electric field is 0 everywhere on the surface of is 0 everywhere on the surface. सपोज आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइनाइट इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस. ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब फ्लक्स 0 है, नेट फ्लक्स इज 0, दिस एंटायर थिंग इज 0. does that mean that electric field will be 0 everywhere on the surface? If flux is 0, does that mean electric field will be 0 everywhere on the surface? So the answer is no. This is false. Why? See, यहाँ ये वाली सिचुएशन में फ्लक्स कितना है? ये वाली सिचुएशन में नेट फ्लक्स इज 0. और डज दैट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सरफेस पे 0 है? मतलब सरफेस के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? नहीं, सारे पॉइंट पे नॉन 0 है. बट द फ्लक्स 0 आ रहा है, मतलब इंटीग्रल ऑफ ई नॉन 0 है, बट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जब कर रहे हैं तो ये 0 दे रहा है. तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए 0 दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ई इंडिविजुअली सारे डी ए पे 0 है. Integral of E dot dA 0 hai doesn't mean that E at every dA is going to be 0. So both the things are independent. Electric field and flux, they are independent. Certainly they are dependent, but I hope you are able to understand. Integral of E dot dA 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि E 0 होगा हर एक पॉइंट. ऐसा हम देख सकते हैं E at different points will be different है ना. R distance पे KQ by R square, R2 distance पे KQ by R2 square. So the flux overall is 0. So if flux is 0, electric field is 0 everywhere on surface? No, not required. Third is, say if electric field is 0 everywhere on the surface, electric field is 0 everywhere on the surface, so in that situation, will the Q enclosed be 0? सोच के आंसर करना. And fourth is, if Q enclosed is 0, electric field 0 on entire surface. Sixth, if Q enclosed 0, is the flux 0? So these are some true false questions you have to answer. So पहला दो डिस्कशन कर चुके हैं, तीसरा वाला करेंगे. देख, if electric field is 0 everywhere on surface, क्या Q enclosed 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर एक पॉइंट पे 0 हो जा रहा है सरफेस पे, मतलब E डॉट डी ए, मतलब है ना इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट डी ए 1 छोटा छोटा करके अगर सारे सरफेस सारे सरफेसेस पे लें, इसी का समेशन ही तो है बेसिकली फ्लक्स. ऐसे करके अगर इनफाइनाइट टाइम्स लेंगे और हर एक सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो नेचुरली जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा रे? तो टोटल फ्लक्स तो 0 ही आ जाएगा. हाँ, सो देयरफॉर इफ E is 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं सरफेस पे, तो फ्लक्स तो 0 ही आना है टोटल. और अगर फ्लक्स 0 आना है, देन फ्लक्स इज Q enclosed by epsilon naught. सो नेचुरली अगर ये 0 है, देन Q enclosed has to be 0. दिस इज ट्रू. ठीक है, सो इफ E is 0, then naturally this is true. Now fifth, this is the fourth question. If Q enclosed is 0, E is 0 on the entire surface. So if Q enclosed is 0, electric field is 0 on the entire surface. This is false. How? See this figure.
हाँ, इफ क्यू एनक्लोज तो है नहीं इसके अंदर में, बट डज दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द एंटायर सरफेस? नॉट एट ऑल, देयर कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेनली। ठीक है, सो इफ क्यू एनक्लोज्ड इज जीरो, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स फ्लक्स इज जीरो, दिस इज ट्रू। वी कैन डायरेक्टली सी दिस फ्रॉम द गॉस लॉ कि अगर क्यू एनक्लोज्ड अगर जीरो है, यहाँ पर में क्यू एनक्लोज्ड अगर जीरो है, certainly the flux has to be zero, तभी तो q enclosed zero होगा। ठीक है, these are some of the common things that pertains to the theory of Gauss law, and that is all that we have to understand कि जो flux होता है उसमें जो contribution होता है charges का, फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, देयर इंटरनल चार्जेस, और एक क्लोज्ड सरफेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये गॉस लॉ का ये जो फॉर्मूला, दिस इज ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, नॉट फॉर ओपन सरफेस। दिस इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो एनक्लोज्ड चार्जेस रहते हैं वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंडिपेंडेंट थिंग, फिर उसके लिए हमको सिचुएशंस एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो अगर अपने को ये फॉर्मूला क्लियर है दैट फ्लक्स इज बेसिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो वाला फॉर्मेट जो क्लियर हो गया है, तो उसके बेसिस पे वी आर रेडी टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो नाउ गॉस लॉ का ओवरऑल एक प्रिपरेशन आ चुका है, सो वी विल सिंपली सॉल्व नाउ क्वेश्चंस एंड विल लर्न हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाइड गॉस लॉ मतलब गॉस लॉ का एप्लीकेशंस, ये कोई अलग चीज नहीं है, का भरोसा नहीं है, मैं मिटा दे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, से फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तब आंसर करना, वरना गलत आंसर करेंगे आप। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लोज्ड हेमिस्फेयर, क्लोज्ड हेमिस्फेयर, ठीक है, एंड a charge q1 is kept just inside and a charge q2 is kept just outside. A charge q1 is kept just inside and a charge q2 is kept just outside. Question is flux due to q1 just inside. ठीक है, second is flux due to q2, this is just outside. Third is flux net, total flux is closed hemisphere से कितना होगा, इसका आंसर करना। Now the second question is that this is an open hemisphere. This is an open hemisphere and यहाँ पर में there is one charge that is kept q and there is a charge that is यहाँ पे रखा हुआ है q. The radius of the hemisphere is say r. ठीक है, सो यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स through the open hemisphere and this q is not kept here, q is kept exactly here. ओपन है, हाँ ओपन हेमिस्फीयर है, सॉरी। सो फ्लक्स is kept through the open hemisphere and the charge q ऐसे करके रखे हुए हैं। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन, सिर्फ उतना ही। सेकंड क्वेश्चन, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ऐसा करके अगेन दिस इज क्लोज्ड हेमिस्फीयर, यह पार्ट 1, दिस इज अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर and closed hemisphere and the electric field is in this direction like this. This is constant electric field and electric field का magnitude E naught J cap. तो flux कितना होगा ये बताना है। The second segment is
कंसिडर दिस थिंग लाइक अगेन इट्स अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे क्लोज्ड हेमिस्फीयर था, यहाँ पे मैं लेता हूँ ओपन हेमिस्फीयर। ठीक है, ओपन हेमिस्फीयर एंड अगेन द फील्ड लाइंस इज इन दिस फैशन। फील्ड लाइंस इज इन दिस पर्टिकुलर फैशन। ओपन हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो यू आर सपोज टू टेल द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आई मीन नॉट क्यूब, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर दैट this is a square of side A and A by 2 from the center के distance पर में this distance is A by 2 के ऊपर में यहाँ पर में Q रखा हुआ है। You are supposed to tell the flux through this particular portion. Flux through this surface कितना होगा, A by 2 ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है। Question number 5, consider that there is a cube that is kept. Consider a cube that is kept and इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर Q is kept। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे Q रखा है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। किसी भी एक सरफेस से आपको बताना है कि कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। नाउ इन द अबव सिचुएशन, इन अबव सिचुएशन if Q is kept at P, find flux through ये वाला सरफेस। फाइंड द फ्लक्स थ्रू ये वाला सरफेस, लेट अस कॉल इट सरफेस 1। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 and again in above situation, actually this can be question number 6 and this can be question number 7. I'll change. This is question number 6 and this is question number 7. In above situation, find the flux to the cube. Yeah, this much. Let us quickly solve it. All of you can once try all the questions quickly and then look at the solutions. ठीक, चलो देखो, पहला सबसे पहले बोला फ्लक्स ड्यू टू Q1। और Q1 क्या है, एक तो क्लोज्ड हेमिस्फीयर है और जस्ट इनसाइड है। इसका मतलब अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट कर देता, अगर ऐसा करके पूरा स्क्वायर होता, तो इस Q1 जो ऑलमोस्ट सेंटर पे है ना, जस्ट इनसाइड Q1 ऑलमोस्ट सेंटर पे है, उसके चलते जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। सो जस्ट इनसाइड के चलते आंसर हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ, क्योंकि आधा ही ये हेमिस्फीयर है ना, तो सिर्फ ऊपर से ही तो फ्लक्स जाएगा रे। नीचे अगर रहता नीचे अगर रहता तो नीचे से जाता, इतना ही जितना ऊपर से जा रहा है उतना ही नीचे से जाता, पर नीचे से जाने वाला तो कोई है नहीं। तो टोटल का हाफ है, तो टोटल है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका हाफ है, तो Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। अब अगर फ्लक्स ड्यू टू Q2 विच इज केप्ट जस्ट आउटसाइड, देखो जस्ट आउटसाइड है, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके चलते जीरो, क्योंकि क्लोज सरफेस ऑलरेडी है। और जस्ट आउटसाइड अगर कोई चार्ज हम रखें तो उसके चलते फ्लक्स कितना होता है, जीरो। तो जो नेट फ्लक्स है वो थर्ड है, वो कितना हो जाएगा, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर ये Q1 कंप्लीटली इनसाइड हो जाता ना, तब आंसर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जस्ट इनसाइड का क्या मतलब है, मतलब लटका के रखे हैं जस्ट यहाँ पर। आप समझ रहे हैं, मतलब जस्ट इनसाइड में आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो सपोज अगर चार्ज अंदर रख देते तब ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाता। तब इस Q का जो कंट्रीब्यूशन होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट इनसाइड का क्या मतलब है, यहाँ पे रखे हैं बिल्कुल, तो जो नीचे वाला फ्लक्स है वो इस सरफेस से नहीं जा रहा, इसीलिए अगर वो चले जाता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। जस्ट इनसाइड का मतलब समझ लेना, जस्ट यहाँ पे एकदम घुसा, एकदम चिपका के ही रखे हैं वहां पे। तो देयरफॉर द आंसर कैन बी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पर अगर अंदर घुसा दिए तो दैट विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर में these three questions are clear। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फ्लक्स टू द ओपन हेमिस्फीयर, यहाँ पर मैं क्यों रखें, दिस इज ओपन हेमिस्फीयर, फ्लक्स कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर गॉस लॉ का यूज कर नहीं सकते, या कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? पहले तो देसी तरीका से देख लेते हैं। देसी तरीके से देखने के बाद जो नॉर्मल तरीका है वो भी देखते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो क्यू को यहाँ पे रखे हैं, हर एक पॉइंट पर में, हाँ, हर एक पॉइंट पर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है हर एक सरफेस पे, वो कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और cos 0 डिग्री लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, वो 0 डिग्री लिख देंगे cos थीटा को, क्योंकि एरिया और जो फील्ड है दे आर रेडियली एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या टोटली पैरेलल टू इच अदर, तो cos 0 डिग्री आएगा वहां पर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको लिखेंगे दैट विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वुड हैव बीन, अगर इस सरफेस को पूरा कर देते हम, पूरा कर देते तो कितना जाता रिफ्लक्स? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना, है ना? सिर्फ ऊपर वाले से कितना जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। So here also in open surfaces also we can use application of Gauss law indirectly. ठीक है? Indirectly we can use Gauss law to tell the value of net flux through open surfaces. ठीक, तो इसका आंसर is Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, right? Now let us come to this particular question कि closed hemisphere है and what is the flux? So in this particular situation the answer is going to be 0. जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है because E is constant, so the answer is 0. This particular situation open hemisphere है, so what is the flux? यहाँ गॉस लॉ यूज नहीं करेंगे, या कॉमन सेंस यूज करेंगे। ओपन हेमिस्फेयर है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर इज गोइंग टू बी E डॉट डी ए, राइट? दैट इज E डी ए कॉस थीटा। आंसर इज दिस थिंग। तो नाउ इफ यू केयरफुली सी, ये तो ओपन है, यहाँ तो खाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो घुस रहा है यहाँ पर में वो ऐसा करके है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगा, है ना? इस पे ऐसा करके आएगा, इस पे, सो हर एक पॉइंट पे ई डी अपना कॉस थीटा करना पड़ेगा। सो जैसा डी ए कॉस थीटा कैसा होगा देखो, आप अगर एक छोटे से सरफेस पे ध्यान दो ऐसा करके, एंड दिस इज द सेंटर, ध्यान से समझना है इस चीज को, ऐसा करके जा रहा है, राइट? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ध्यान से देखो जो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाले डायरेक्शन में और डी ए है ये पर्टिकुलर चीज, सो कॉस थीटा इज दिस थिंग, राइट? नाउ सरफेस इज लाइक दिस, थोड़ा बोल्ड बना दे रहा हूँ, दिस इज सरफेस, राइट? ओके, सो दिस थिंग इज थीटा। सो इफ वी केयरफुली सी, दिस थिंग कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। देख रहे हैं आप, ये अगर थीटा है तो ये जो एंगल बनाएगा ये 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा? थीटा, राइट? ये एंगल बनाया अगर थीटा, सो ये है डी ए, सो व्हाट इज डी ए कॉस थीटा? डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से, ये जो एरिया बना ना, ये थीटा का इसका मतलब क्या है? ये एंगल थीटा, ये थीटा मतलब ये थीटा, राइट? एक ही तो ऐसा लाइन है रे। तो बेसिकली डी ए कॉस थीटा का मतलब इसका ये वाला प्रोजेक्शन, डी ए कॉस थीटा का मतलब ये वाला प्रोजेक्शन हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो एरिया ऐसा करके है ना, जो पूरा एरिया है जो मैंने रेड मार्क से बनाया है, इसका प्रोजेक्शन बोले तो ये ग्रीन वाला एरिया, ये कॉस थीटा ये आएगा। समझ में आया? सो देयरफॉर ये जो पूरा हेमिस्फेयर है इसका अगर छोटा छोटा डी ए कॉस थीटा करेंगे तो वो क्या आएगा? इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन, इस हेमिस्फेयर का डी ए कॉस थीटा का वर्टिकल प्रोजेक्शन इज नथिंग बट दिस फ्लैट सरफेस, इट इज पाई आर स्क्वायर। So therefore, integral of E dot dA में E is constant, E can be taken outside and this will be integral of in dA cos theta, and integral of dA cos theta is what? E multiplied by pi r square, and naturally this will be positive क्योंकि बाहर की तरफ है ऐसा area and electric field is in direction, so the summation will be E into pi r square, right? सो यहाँ तक खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप दिस इज क्लियर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा क्यों, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये कई जगह काम आएगा। ऐसा करके देखो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करके दिया है, मैं इसका एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ। बेसिकली आपको एरिया का वो प्रोजेक्शन लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देसी स्टाइल में अगर बोले, मैं इसको एक जनरलाइज, अगर इसको जनरलाइज करना चाहें हम, डी ए कॉस थीटा क्या मतलब है कि एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसे करके आपको दिया है दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू हैव अ सरफेस